Now we'll start with visual process and field of vision. So basically, how we see and how much we will see. This is the visual process and the field of vision. What is visual process? Visual process is a series of action during visual perception. So that if there is an object and we are able to see it, it is due to visual process. Image of object, any object we are seeing, its image will be focused on our retina. And energy in visual spectrum, which is in form of light energy, will be converted into electrical potentials or impulses by the rods and cones through a series of chemical reactions. अब ये जो chemical reactions है, ये convert करते हैं हमारे visual energy को electrical potentials में. Now, impulses from the rods and cones reach the cerebral cortex through the optic nerve. Sensations of vision are produced in cerebral cortex. This process explained through image formation, neural and chemical phenomena. तो तीन phenomena होते हैं. Image form होगी, then chemical phenomena होंगे, and then neural phenomenon होंगे जिससे कि हमें कोई object दिखाई देगा. We'll be able to see an object. Now, what is image forming mechanism? How we are able to see an image? Light rays from an object are refracted and focused on retina. अब ये जो image बनी, that is inverted and reversed from left to right, that is side to side. But due to our cerebral cortex role, we are able to see this image in a normal upright position. Cerebral cortex उसको वैसे ही perceive करता है. Light rays are refracted through lens and cornea. दोनों ही convex surfaces है and उनका अपना refractory power होता है. They have how much they will refract the light. So this refractory power is measured in diopters. Diopter is reciprocal of focal length in meters. That is D is equal to 1 by F. Focal length of cornea is 24 and refractory power will be 42 diopters, and that of lens is 44. This is in millimeters, and refractory power will be 23 diopters. Now, कहाँ से स्टार्ट होता है विजुअल प्रोसेस? इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेटाइना, है ना? तो रेटाइना एंड उसके अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, दे प्ले द मेन रोल. सो रेटाइना में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर नोन एज रॉड्स एंड कोन्स. हमारी आईज में 12 million rods and 6 million cones are there. Distribution varies across retina. So it will not be that equal amount of rods and cones are present across entire retina. In fovea, only cones will be present and no rods. And moving from fovea to periphery, rods increase in number and cones decrease. So the periphery hai, that will have only rods and no cones. Now, what is the function of rods? Rods are sensitive to light with a low threshold. बहुत ही कम जब dim light होती है, like twilight में हुआ, when sun is rising or setting, और बहुत ही night में बहुत ही dim light हमने जला रखी है, at that time rods come into action. They are responsible for dim light vision, also known as night vision or the scotopic vision. They do not contribute to visual acuity and color vision. कितना clear हमको दिखेगा, colors हम कितने अच्छे से perceive करेंगे, ये rods का function नहीं है, ये cones का function है. तो rods का जो vision है, that will be black, white or shades of gray. Now, what is the functions of cones? Cones are receptors of bright. ये इनका दूसरा नाम ही है ना? हाई थ्रेशोल्ड पर लाइट स्टिमुलस होता है, थोड़ी बहुत लाइट में एक्टिवेट नहीं होंगे. सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, सो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन और डे लाइट विजन, है ना? ब्राइट लाइट में जो हम दिखते हैं उसको, उसके दूसरे नाम ये दोनों हैं. नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एक्विटी एंड कलर विजन. नाउ व्हाट इज द केमिकल बेसिस ऑफ विजुअल प्रोसेस? क्या केमिकल चेंजेस होते हैं?
तो जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स है उनमें फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है। फोटो सेंसिटिव मीन्स विच इज सेंसिटिव टू लाइट। जब भी लाइट गिरेगी उस पर तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे। एंड ये जो केमिकल रिएक्शंस है, द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन दीज फोटो रिसेप्टर्स, दे क्रिएट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, या जिसको अपन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या एक्शन पोटेंशियल्स कहते हैं। दे विल बी जनरेटेड इन रेटाइना एंड देन दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिक नर्व. These photochemical changes are also known as Wald's visual cycle. Now, what exactly occurs? Rods में there is a photosensitive pigment known as rhodopsin. है ना, रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट को सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको हम फोटो सेंसिटिव कहते हैं। वो प्रेजेंट होता है। अब ये दो पार्ट से बना होता है, एक होता है प्रोटीन पार्ट जिसको ऑप्सिन कहते हैं, एंड एक क्रोमोफोर पार्ट। तो अब जो ऑप्सिन है रॉड्स में, दैट इज नोन एज स्कोटॉप्सिन। इसको हम स्कोटॉप्सिन भी कहते हैं, है ना, जो स्कोटॉपिक विजन नाइट में एंड स्कोटॉप्सिन इसमें वो होता है। व्हाट इज क्रोमोफोर? क्रोमोफोर इज अ एटम और अ ग्रुप whose presence is responsible for the color of a compound. अब ये जो क्रोमोफोर है रेड रॉड्स में, उस वो क्या कहलाता है? रेटिनल। रेटिनल क्या होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन ए, और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। सो इसीलिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी में हमें अंधेरे में नहीं दिखाई देता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बिकॉज दिस विल नॉट बी एबल टू वर्क। अब फोटोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं रोडोप्सिन में? जब भी लाइट आएगी, लाइट विल फॉल ऑन रॉड्स, एंड रॉड्स में रोडोप्सिन है, तो whenever it is exposed to light, rhodopsin will get bleached. तो इट विल बी स्प्लिट इनटू ऑप्सिन एंड रेटिनिन, है ना। ऑप्सिन पार्ट अलग हो गया जो कि इसका प्रोटीन पार्ट है, एंड रेटिनिन पार्ट अलग हो गया। कैसे होगा ये? थ्रू वेरियस इंटरमीडिएट फोटोकेमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं बीच में लाइट पड़ने के बाद, उससे ये होता है। इस बीच में एक मेटारोडॉप्सिन नाम का सब्सटेंस बनता है जो कि एक्टिवेटेड रोडोप्सिन है। अब ये जो मेटारोडॉप्सिन है, दिस विल जनरेट रिसेप्टर पोटेंशियल इन द रॉड सेल्स। तो ये जो रिसेप्टर पोटेंशियल बना, दिस रिसेप्टर पोटेंशियल विल transmit as neural signals. Next we come to a term phototransduction. क्या होता है ये? Conversion of light energy into receptor potential in the visual receptors. Light energy कन्वर्ट हुई रिसेप्टर पोटेंशियल्स में, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में। कहाँ पे? विजुअल रिसेप्टर्स में, रॉड्स कोन्स जो रेटाइना में प्रेजेंट है। अब मेम्ब्रेन का एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, जो भी इन सेल्स की मेम्ब्रेन है उसका डार्क में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अराउंड -40 millivolts. अब जब whenever light exposure occurs, it converts rhodopsin to metarhodopsin. This causes मेटारोडॉप्सिन causes mild hyperpolarization. तो इस पे कुछ पोटेंशियल जनरेट होते हैं रिसेप्टर्स में। while most of the other हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, दे एक्ट ऑन डीपोलराइजेशन, यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन होता है। दिस इज अ डिफरेंस. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाइपरपोलराइजेशन? दिस लीड्स टू रिस्पॉन्स इन बाइपोलर एंड गैंग्लियोनिक सेल्स। तो जो हमारे बाइपोलर एंड गैंग्लियोनिक सेल्स है रेटाइना में, इन लेयर्स ऑफ रेटाइना वी हैव रेड, इनमें रिस्पॉन्स होता है सो दैट द एक्शन पोटेंशियल is generated and this is then transmitted to cerebral cortex via optic pathway. So this is the importance of hyperpolarization. Then ये हुआ rods के बारे में. Then in cones. Cones में
तीन तरह के फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है, porphyropsin, iodopsin and synopsin. Each cone has only one type of pigment sensitive to specific light wavelengths. Phototransduction in cones is similar to in rods, है ना? वही जब लाइट आएगी तो केमिकल रिएक्शंस होंगे, ब्रेक होगा, एक अनएक्टिव प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बनेंगे. व्हाट इज डार्क अडेप्टेशन? अब इस सब प्रोसेस को समझने का मतलब यही है कि हम हमारे विजुअल प्रोसेस को समझ सके, है ना. जब भी हम लाइट से डार्क में जाते हैं तो हमें कुछ टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में, हमको दिखने में. तो दिस इज नोन एज डार्क अडेप्टेशन, एबिलिटी टू सी इन डिम लाइट आफ्टर बीइंग इन ब्राइट लाइट. एकदम से लाइट जब चली जाती है, व्हेन देयर इज पावर फेलियर, वी आर नॉट एबल टू सी फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसके बाद में हमें धीरे धीरे सब दिखाई देने लग जाता है. दिस इज ड्यू टू डार्क अडेप्टेशन. इट टेक्स अबाउट 20 मिनट्स फॉर फुल अडेप्टेशन. क्यों लगता है ये टाइम? क्योंकि जो रोडोप्सिन ब्रेक हो गया है ऑप्सिन और रेटिनल में, दैट हैज टू बी रीसिंथेसाइज्ड. तो उस रीसिंथेसाइज होने में इसको इतना टाइम लगता है. और दूसरा क्या प्रोसीजर है? जो प्यूपिल्स है हमारे, वो डायलेट होते हैं. तो दिस अलाउज मोर लाइट टू एंटर इनटू द आई. नाउ व्हाट इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइट अडेप्टेशन? अब जब डार्क अडेप्टेशन हुआ था, तो जैसे ही हम लाइट, अगर एकदम से लाइट आती है तो क्या क्या चेंजेस होंगे वापस. एंड यूजुअली वी टेंड टू क्लोज आवर आईज एकदम से जब लाइट, ब्राइट लाइट में जाते हैं, देन स्लोली वी आर एबल टू सी क्लियरली. दिस इज लाइट अडेप्टेशन. दिस टेक्स ओनली अबाउट 5 minutes. Why? Because रोड्स में जो रोडोप्सिन है उसको ब्रेक डाउन करना है. रीसिंथेसिस में टाइम लगता है, ब्रेक डाउन में इतना टाइम नहीं लगता है. ड्यू टू, एंड there is due to reduced sensitivity of rods है. एंड दूसरा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. तो जब प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो लाइट की एंट्री कम हो जाती है. तो जब लाइट की एंट्री कम होगी तो वी विल बी एबल टू सी ए ब्राइट लाइट ऑल्सो. व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस इज लॉस ऑफ विजन इन डिम लाइट. व्हेन नाइट में हम देख नहीं पाते हैं. तो पहले बच्चों में बहुत कॉमन होता था ये नाइट ब्लाइंडनेस. और दूसरे नाम इसके निक्टलोपिया और डिफेक्टिव स्कोटॉपिक विजन. सो आपके शॉर्ट नोट्स इस नाम से भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निक्टलोपिया, है ना. So you should be able to know, because this is not difficult to remember ना, ये सब तो आपको पता है. बट निक्टलोपिया आ गया एंड यू कीप ऑन थिंकिंग कि ये क्या था, तो दैट शुड नॉट अकर. नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो नोन एज निक्टलोपिया एंड डिफेक्टिव स्कोटॉपिक विजन. विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट. रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल का जो जो रॉड्स का क्रोमोफोर है, दैट इज विटामिन ए डिराइव्ड प्रोडक्ट, रेटिनॉल. तो इसके लिए इट इज एसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ रॉड्स. क्यों होता है नाइट ब्लाइंडनेस? ड्यू टू डाइट लो इन विटामिन ए. तो विटामिन ए जब बच्चे नहीं, डाइट में नहीं जाते, लाइक कैरेट्स आर रिच इन विटामिन ए, then green leafy vegetables should be there. So it's an important part of night of malnutrition. जिन बच्चों में प्रोटीन एनर्जी malnutrition या malnutrition होता है, उसमें इट इज वेरी कॉमन. इससे पहले एक कंडीशन होती है जिसे नोन एज xerophthalmia. Xerophthalmia means dryness of eyes, and then occurs night blindness. When this deficient, and secondly, when there is decreased absorption of vitamin A, है ना? तो causes क्या होगा? Diet low in vitamin A and decreased absorption of vitamin A. Decreased absorption will occur when in malabsorption syndromes. जब भी malabsorption syndromes होंगे तो उनमें there will be decreased absorption of vitamin A. अब इनिशियली क्या होता है, जब बहुत, when the deficiency is for very short term, so the changes that occur are reversible. तो
जैसे ही हम विटामिन ए सप्लीमेंट करेंगे, चाइल्ड विल बी एबल टू सी इन नाइट, or any patient will be able to see in night. But when there are prolonged deficiency for long time, there occur anatomical changes and degeneration of retinal layers. जो रेटिना की layers है, उसमें anatomical changes and degeneration हो जाता है. इसके बाद में एक बार ये रिसेप्टर डिजेनरेशन हो गया, तो रेटिनल फंक्शन विल नॉट बी रिस्टोर्ड. सो वी हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट विथ विटामिन ए बिफोर रेटिना इज retinal these receptors, photoreceptors are completely destroyed. So this was about chemical part of visual process. Now we come to acuity of vision. What is acuity of vision? Ability to determine precise shape and other details. रफ है, सॉफ्ट है, कलर क्या है, कितना बड़ा है, छोटा है, बॉर्डर्स कितने शार्प है ना. All this uh, uh, will be defined in our acuity of vision, also known as visual acuity. Cones of retina are responsible for visual acuity. ठीक है, night vision rods and visual acuity cones. हाईली एग्जिबिटेड इन फोविया सेंट्रालिस. जो फोविया सेंट्रालिस है वहां पे सबसे ज्यादा कोन्स है, तो इसलिए इट विल बी बेस्ट विजुअल एक्विटी विल बी इन फोविया सेंट्रालिस. ग्रेटली रिड्यूस्ड इन रिफ्रैक्टरी एरर्स. रिफ्रैक्टरी एरर्स क्या होते हैं? Due to change in curvature of cornea or lens, when the image is not formed on retina and it is formed either before retina or behind retina, these are known as errors of refraction. उसमें हमारा vision कम हो जाता है. So whenever there is difficulty in seeing distant or near objects, it is known as refractive error or error of refraction. When we are not able to see things for at distance, this is more commonly यही होता है, distant vision ही जाता है. Especially in children या generally जिनके भी specs होते हैं, more common it is due to defect in distant vision, है ना. तो you might have seen, many of you might have gone for eye checkups ना, तो ये Snellen's chart है, इससे हम distant vision देखते हैं. And in few children and mostly at 40 to 50 years of age, near vision में problem आने लग जाता है. That is also known as breast biopsy. उसको हम check करते हैं इससे Jaggers chart. We hold it in hand and then try to read the nearby things ना, बहुत पास में place करके उसको then we try to read it. So if we are not at what distance and then with what power of lenses we are able to read, उससे हमारा error of refraction निकलता है. Now what is field of vision? The part of external world we are able to see. तो ऊपर हम देखेंगे तो हम एक लिमिटेड अमाउंट दूर तक देख पा रहे हैं. डाउनवर्ड्स वी आर एबल टू सी, बोथ साइड्स वी आर एबल टू सी व्हेन वी टर्न आवर आईज ना. सो बट अगर हम एक ही जगह अपनी आईज को फोकस करें एंड उस जगह फोकस करने के बाद व्हाट पार्ट वी आर एबल टू सी, है ना. हम जनरली इसको ऐसे टेस्ट करते हैं कि हम एक थंब लेंगे, फोकस हम सामने ही करेंगे एंड देन हम इसको इधर लेके जाएंगे, जहां ये दिखना बंद होगा वो हमारा फील्ड ऑफ विजन है टुवर्ड्स दिस साइड. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल फील्ड ऑफ दैट आई. नाउ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दोनों आईज का अलग अलग, है ना. तो टेम्पोरल इज टुवर्ड्स द, ये टेम्पल्स है तो टुवर्ड्स टेम्पोरल साइड हम जितना देख पा रहे हैं. नेजल मीडियली, है ना. एंड ऊपर अपर ऊपर एंड लोअर नीचे. तो ये 4 पार्ट्स में हमारे डिवाइडेड. नाउ व्हाट इज बाइनोक्यूलर विजन एंड मोनोक्यूलर विजन? बाइनोक्यूलर विजन में हमारी दोनों आईज, बोथ आर आईज आर यूज्ड टुगेदर. सो ह्यूमंस में, सम एनिमल्स में जिनमें आईज आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ फेस, we are able to see
we are able to have binocular vision. Eyeballs are placed in front of head and the visual fields will overlap each other. But वो cerebral cortex makes it as a single vision. मोनोक्यूलर विजन में क्या होता है, जैसे काउस में, डॉग्स में, हॉर्सेस में आईज फेस के साइड में प्लेस्ड है, तो दे विल हैव wider vision and each eye will have different vision, different portions of external world each eye will see. Now, how much our eye is able to see? What is the division of visual field? Visual field angle कितना होता है? तो horizontal में we are able to see up to 160 degree. ये यहाँ से ये 160 डिग्री तक हम देख पाते हैं, 180 नहीं जाता है, 160 तक ही देख पाते हैं. एंड वर्टिकल मेरिडियन में इट्स अराउंड 135 degree. And it is divided into 4 parts again: temporal, nasal, for like this eye, this will be temporal, this will be nasal, upper field and lower field. Now, what are temporal and nasal fields? हम एक imaginary vertical line passing through the fixation point हम अगर बनाते हैं, है ना, that is like meeting point of visual axis with the object. जो हमारा visual axis बन रहा है, हम we read about visual axis in previous lecture. So जो visual axis बन रहा है, उससे हम meeting point of visual axis with that object जो है, उससे एक vertical line अगर हम pass करें पूरी, तो उससे ये हम divide कर सकते हैं. Visual field of each eye is divided into 2 unequal parts, that is namely outer or temporal field and inner or nasal field. Fixation point is meeting point of visual axis with the object. ठीक है, तो जो fixation point है, that is the meeting point of visual axis. Visual axis we read, वो जहां object से meet कर रहा है, this is the fixation point. Now, what is temporal field? It is the outer part of visual field. एक वर्टिकल लाइन बनी फिक्सेशन पॉइंट के थ्रू, उसमें से उसके जो बाहर बाहर है, दैट इज टेम्पोरल फील्ड. इट एक्सटेंड्स अप टू 100 डिग्री. एंड देन नेजल फील्ड, इसका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ये नोज से. अगर हम इस आई का देखें ना, अगर हम इधर देख पा रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू दिस आई, बट अगर हम इस आई का देखेंगे तो ये नोज से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इधर का विजन, तो इट इज ओनली 60 डिग्री. तो टोटल ये 160 डिग्री हो जाता है. Then upper and lower fields, ये divided by horizontal line passing through the fixation point. जो upper field है, that extends up to about 60 degree. तो it is restricted by अपना orbit का ये margin and upper eyelid, है ना. And lower field जो है, it extends about 75 degree and this is restricted by cheek. हम नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो cheek से वो restrict हो जाता है. एंड ऑल साइड्स में तो हो गया रिस्ट्रिक्शन, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, बस टेम्पोरल साइड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. नाउ व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग रेटाइनल पॉइंट्स? तो इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट सामने, है ना, बाइनोक्यूलर विजन में क्या होगा, दोनों आंखों में उसकी रेस जाएगी और रेटाइना के अलग अलग पॉइंट पे एक इमेज बनेगा. सो दीज पॉइंट्स जिसपे दोनों रेटाइना में इमेजेस बन रही है, दैट इज द these are the corresponding retinal points. Areas on the retina of both eye where light rays from object fall during binocular vision. Then these two images are fused into a single sensation by our brain to create a single image. What is diplopia? Diplopia is also known as double vision. कब होता है? It occurs when light rays do not fall on the corresponding points. तो generally squint में ना, जो squint होता है ना, जब one side of our pupil is on center and the other side it is not on center.
तो ये होता किस वजह से? दिस इज ड्यू टू वीकनेस ऑफ आर intraocular muscles. So normal single sensation is due to ocular muscles. It is function of ocular muscles कि वो eyeballs को इस तरह से rotate करे या place करे कि the image is formed on the corresponding retinal points. But अगर ऐसा नहीं होता है तो we will see one object as two, double vision होगा, है ना? तो this is known as diplopia. That's why eye muscle exercises are very important. When we are seeing on our mobiles and screens continuously, we are only fixing the near object. तो हमारी जो far fixing वाली muscles होती है, they get weak and eventually we can have problems. So please keep on exercising for your muscles of your eyes. Blind spot. What is blind spot? We read in the previous lecture. We went through it in previous lecture. Small area of retina without visual receptors. ठीक है, कहाँ होता है ये? ऑप्टिक डिस्क जो बनती है, दैट इज द एरिया। जो नर्व्स वाली लेयर आई वो एक जगह मिलके ऑप्टिक नर्व बनाती है। तो जहां पे ये ऑप्टिक नर्व बन रही है दैट इज ऑप्टिक डिस्क, एंड यहाँ पे रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। सो ऑब्जेक्ट image जो भी अगर रेज जब भी when it will fall here we will not be able to see that object, it is a blind spot. But normally क्यों नहीं है हमें inconvenience करता है? Because इसका जो corresponding retinal point दूसरी आई में होगा that will not be on blind spot. So ड्यू टू डिफरेंट फिक्सेशन एंगल्स, क्योंकि दोनों का फिक्सेशन एंगल अलग अलग है, सो it will not cause any problem. We are able to see all the objects. Blind spot can be recognized through experimental procedures. है जब हम field of vision देखते हैं तो हम उसे कर सकते हैं perceive. Now visual fields and retina. Light rays from different halves of each visual field fall on opposite halves of retina. ये ऑब्जेक्ट है, इधर की इधर जाएगी और इधर की इधर जाएगी, ऐसे ऑपोजिट हाफ्स ऑफ रेटिना पे जाएगी। टेम्पोरल विजुअल फील्ड की जो रेस है वो दे विल गो ऑन नेजल साइड, एंड जो नेजल साइड की है दैट विल गो ऑन टेम्पोरल साइड। मैपिंग ऑफ विजुअल फील्ड्स, शेप एंड एक्सटेंट ऑफ विजुअल फील्ड आर मैप्ड यूजिंग अ पेरीमीटर, है ना? पेरीमीटर नाम का एक instrument, we can say, एक्चुअली पेरीमेट्री इज अ प्रोसेस, है ना? जिसपे हम एक स्क्रीन पे लाइक पे आप पहले वी यूज्ड टू डू इट विथ थंब, इसको मूव करते थे एंड जहाँ पे नहीं दिख रहा है मेजर, आपको कोई एरियाज है जहाँ नहीं दिख पा रहा है तो वो पता चल जाता था। नाउ इट्स बाय machines. Shape and extent of visual fields are mapped using a perimeter. Visual field can also be determined using Jerome screen और confrontation test. तो ये एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसपे कहाँ कहाँ आपको विजुअल डिफेक्ट आ रहा है वो पता चल जाता है। इसमें हमको ये ब्लाइंड स्पॉट भी पता चल जाता है। तो इस तरह से ये पेरीमेट्री पे हम देख पाते हैं। So I think ये इतना sufficient है for you कि आप जेरम स्क्रीन confrontation you should just know about them, है ना? कि इस तरह की कुछ चीजें होती है। So this was about visual process, acuity of vision, and basically some part about visual fields, है ना? तो अगर ये visual fields and retina वाला part, I think I rushed through it, so मैं एक बार वापस बता देती हूँ। जो टेम्पोरल, ये यहाँ से डिवाइड हो गया टेम्पोरल और नेजल में, तो इधर जो ऑब्जेक्ट है उसका पड़ेगा हमारे नेजल साइड में, एंड जो नेजल साइड में है उसकी रेस जाके पड़ेगी इधर टेम्पोरल साइड में। तो इस तरह से क्रिस क्रॉस हो जाए। ओके गाइस, गो थ्रू इट। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर डेंटल स्टूडेंट्स व्हाट आई एम टेकिंग। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा शॉर्ट होगा, बट आई थिंक इफ यू रीड दिस मच एंड देन थोड़ा बहुत और कर लो तो दैट शुड बी सफिशिएंट।
Thank you. See you all again.